जी हां, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संसद से। राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किए गए 8 सांसद। राज्यसभा में हंगामे पर सभापति का बड़ा बयान। कल जो हुआ वो बेहद दुखद हुआ। वेंकैया माइक तोड़ना संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जिस तरीके से रूल बुक फाड़ी गई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उपसभापति की बात नहीं मानी गई, ये वेंकैया नायडू का कहना है। कल देर शाम 5 बजे वेंकैया नायडू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद ही ये फैसला माना जा रहा था कि आज इन 8 सांसदों का निलंबन हो जाएगा। निलंबन के बाद भी राज्यसभा में हंगामा बना रहा। लोग चिल्लाते रहे कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। 3 बार राज्यसभा को एडजर्न करना पड़ा। दरअसल कल 2 फार्मर्स बिल आए थे जिसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। विपक्ष लामबंद था और साथ ही साथ कह रहा था कि आज 1 बजे के बाद हाउस चलाने की जरूरत नहीं है। कल इस बिल को लिया जा सकता है जब मिनिस्टर का रिप्लाई हो जाए। साथ ही साथ अपोजिशन की मांग थी कि क्योंकि बीजेपी, टीआरएस वो दल जो कभी भी अपोजिशन के साथ नहीं होते हैं, कल फ्लोर ऑफ द हाउस साथ थे, तो अपोजिशन बार बार ये डिमांड कर रहा था कि ये उनका अपना, आप कह सकते हैं, प्रिविलेज है कि इस पर वोटिंग कराई जाए, इस पर मत विभाजन हो। लेकिन उपसभापति ने यह बात नहीं मानी थी। उसके बाद विपक्ष ने यह फैसला किया था कि जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यानी 12 दल, उन्होंने पहले संसद परिसर में हंगामा किया, उसके बाद संसद परिसर के बाद धरना दिया। जब हाउस एडजर्न हो गया तो उसके बाद भी राज्यसभा में सांसद 1 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद मार्शल्स को बुलाना पड़ा जिसमें कि सांसदों को बाहर किया जाए। उसके बाद 12 विपक्षी दलों ने एक साथ ये फैसला किया कि चेयर यानी डिप्टी चेयर हरिवंश के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आज मूव किया जाएगा। हालांकि चेयर में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने ये प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। सांसदों के निलंबन पर सभापति का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। The motion has been moved. The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Elmaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the House. Those members who have been called, leave the House. Honorable members, I was so pained yesterday. All social distancing and COVID-19 related precautions were violated by some members in the House yesterday. It pained me a lot because of what happened yesterday defies logic. It was really a bad day for Rajya Sabha. Some of the members also accepted, outside also, yes, they did it, and getting onto that table, dancing in the House, and also obstructing the business of the House. This is very unfortunate, it's unacceptable, and also condemnable. It tarnished the image of Parliament, particularly the Elders' House. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing Deputy Chairman from his duties, throwing papers, rule book on Deputy Chairman, is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of Parliament, please do some introspection. And is it the way to conduct? If marshals were not called on time, what would have happened to the Deputy Chairman? I am worried. He says he was abused with objectionable words. These are all very unfortunate. These things should not be allowed. If you have any problem, the only way is discuss, debate, and decide. If you have the numbers, vote against the resolution. And also the Deputy Chairman said, you please go to your seats. I will conduct voting. He said it, it's on record. It is shown all over. So
that being the case, I suggest to the members, please, we are giving advice to the general public. We ourselves do not practice a safe distance. Do not follow what has been advised. This is really very unfortunate and condemnable. ये आप चेयर को सुन रहे थे, यानी वेंकैया नायडू को बता रहे थे कि अगर मार्शल को नहीं बुलाया गया होता हाउस के अंदर तो और क्या हो सकता था कल राज्यसभा के अंदर। जी हाँ, किसानों से जुड़े दोनों विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। इससे पहले कृषि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, जहां एक तरफ किसान इस बिल का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए तो वहीं विपक्ष ने राज्यसभा में बिल को लेकर हंगामा किया। आपको किसानों के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमृतसर, अंबाला, लुधियाना, रोहतक, भटिंडा, बरनाला। जी हाँ, 6 तस्वीरें उन जगहों की हैं जिसको किसान आप कह सकते हैं प्रधान स्टेट कहा जाता है, यानी हरियाणा और पंजाब। सबसे ज्यादा विरोध जो हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हरियाणा और पंजाब की। पंजाब से यानी सबसे पुराने एनडीए के घटक श्रोमणी अकाली दल ने भी जब ये बिल पेश हुआ था लोकसभा में तो खुद सुखबीर बादल खड़े हुए थे और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था। हरसिमरत कौर जो कि एनडीए में कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर थी, उन्होंने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया गया था। दरअसल पंजाब और हरियाणा में इस बिल को लेकर किसानों का बड़ा विरोध है। किसानों को लगता है कि जितने भी अधिकार हैं किसानों के, उन सब का हनन है। साथ ही साथ राज्यों को लगता है कि जो मंडी के ऊपर कानून लाया गया है इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा। इसीलिए किसान और साथ ही साथ कांग्रेस सड़कों पर है। हम ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर, अंबाला, लुधियाना, रोहतक, भटिंडा, बरनाला। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आईएनएलडी नेता भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। पहले राकेश के पास चलते हैं। राकेश, ताजा स्थिति क्या है इस वक्त राज्यसभा में, क्या हो रहा है? देखिए, राज्यसभा में पूरी तौर पर हंगामा रहने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष जो है काफी तल्ख है। राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा के दौरान रविवार को हंगामा करने और सदन के बेल में आने वाले 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबित कर दिया है। उसको लेकर जो है पूरा विपक्ष जो है आक्रोशित है और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। Please go to your seats. Please go to your seats. If LOP has to speak, he should be heard. He should be heard with discipline, not like this. Please go to your seats. LOP will speak first. Please go to your seats. I will listen to LOP, not you. You go to your seats. You go to your seat. ये आप देख रहे हैं राज्यसभा की लाइव कार्रवाई देख रहे हैं। हालांकि डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन नहीं है, भुवनेश्वर कलिता जो कि बीजेपी से असम से सांसद हैं, वो इस वक्त चेयर पर हैं और लगातार हंगामा चल रहा है। वेल की तस्वीरें भी अभी आपने देखी किस तरीके से विपक्ष के जो सांसद हैं निलंबन के खिलाफ वेल में उतर आ रहे हैं और मुझे लगता है कुछ रूल बुक है जो पढ़ना चाह रहे हैं भुवनेश्वर कलिता जी। के रागेश साहब, नसीर हुसैन, रिपुन बोरा, दौला सेन, एलमन करीम, please go out of the house. Please go out of the house. Then I will listen to LOP and all other issues will be resolved. I am not allowing the minister. कलिता यानी वो जो ऑर्डर था चेयर का यानी वेंकैया नायडू का, उसको चेयर पर बैठने के बाद भुवनेश्वर कलिता जो है, जो कि आप कह सकते हैं स्पीकर चेयर पर है इस वक्त, वो उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं कि जो 8 सांसद हैं जिनका नाम दिया गया है, हम लगातार नीचे आपको नाम दिखा रहे हैं, के रागेश हो, डेरेक ओब्रायन हो या कांग्रेस के सांसद हो, डोला सेन हो, उन सबको हाउस से बाहर जाने के लिए इस वक्त चेयर की ओर से कहा जा रहा है। रिपुन बोरा, जी 8 सांसदों का जिनका निलंबन हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां कल डेरेक ओब्रायन और विपक्ष के सांसद डिप्टी चेयर यानी हरबंस सिंह की चेयर तक पहुंच गए थे और रूल बुक फाड़ी थी, और एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऑर्डर की तामील कराई जा रही है। जी 8 सांसदों को निलंबित किया गया है इस पूरे सत्र के लिए और उसके बाद अब इसी कार्रवाई पर आगे चेयर भुवनेश्वर कलिता जो कि चेयर पर बैठे हैं वो आदेश दे रहे हैं कि वो 8 सांसद हाउस से बाहर चले जाएं। अगर हाउस से बाहर नहीं जाएंगे
तो मार्शल्स को बुलाना पड़ेगा। मार्शल्स 8 सांसदों को बाहर करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कैसे गतिरोध जारी है राज्यसभा के अंदर। कल जो फार्मर्स से रिलेटेड 2 बिल पास हुए हैं उसके खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। जोरदार प्रदर्शन के बाद हाउस को एडजर्न करना पड़ा। आज भी 3 बार हाउस एडजर्न हुआ है और एक बार आज चेयर ने फैसला लिया है कि 8 सांसद जिन्होंने कल व्यवहार ठीक नहीं किया था चेयर के साथ, हंगामा किया था, माइक्स जो थे वो फेंके थे, साथ ही साथ जो रूल बुक थी उसको फाड़कर फेंका था, उन 8 सांसदों को निलंबित किया गया है और आज उनसे कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा से बाहर जाएं। राज्यसभा की कार्रवाई हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां लोकसभा में भी हंगामा हुआ था। अकाली दल ने इस्तीफे की ऐलान करी थी, कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया था और हैरानी वाली बात यह थी कि सरकार का समय पर साथ देने वाली बीजेडी और टीआरएस भी कहीं ना कहीं इस बिल के विरोध में नजर आई थी लोकसभा के अंदर। और आज 8 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई करी गई है। सुबह से ही हंगामा है राज्यसभा के अंदर और अब चेयर का ये ऑर्डर आया है कि जो 8 सांसद राज्यसभा से निलंबित हुए हैं वो बाहर जाएं। अब तक सभी 8 सांसद राज्यसभा के अंदर हैं। हंगामा चल रहा है और विपक्ष राज्यसभा के वेल पे मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी लाइव प्रसारण है राज्यसभा का। राज्यसभा में अभी भी हंगामा चल रहा है। कल हालांकि बिल पास हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि मत विभाजन यानी अब आप कह सकते हैं जो वोटिंग होनी चाहिए थी बिल पर वो नहीं हुई। मिनिस्टर्स रिप्लाई के बाद एक दिन एडजर्न करने की बात थी क्योंकि 1 बज गया था, वो भी नहीं माना, तो उसके खिलाफ विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन हरिवंश सिंह के खिलाफ मूव किया था। हालांकि चेयर ने आज इसको खारिज कर दिया है। चेयर ने यह फैसला लिया है कि 8 सांसदों का निलंबन किया जाएगा। अब फिलहाल चेयर उन 8 लोगों का नाम पढ़ चुकी है। अभी भी हंगामा जारी है, विपक्ष के सांसद वेल में है और आप सीधे देख सकते हैं चेयर से जो लाइव प्रसारण हो रहा है। भुवनेश्वर कलिता साफ कह रहे हैं कि वो 8 सांसद राज्यसभा से बाहर जाए। किसानों के ऊपर राजनीति तेज है, चाहे वो सड़क हो चाहे संसद हो, हर आदमी का अपना पक्ष है। बीजेपी मानती है कि इससे किसान का जीर्णोद्धार होगा, वहीं कांग्रेस और विपक्ष मानता है कि ये केंद्र का चाबुक है जो किसान को कमजोर कर दोगे। आगे क्या होगा राज्यसभा में, 8 सांसद कब बाहर निकाले जाएंगे, क्या रूल आएगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। चौथी बार एडजर्न करना पड़ा है क्योंकि जो सांसद थे जिनको निलंबित किया गया था वो हाउस से बाहर नहीं जा रहे थे। विपक्ष के सांसद लगातार वेल में थे, इसलिए एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। जैसे ही राज्यसभा शुरू होती है, कोई अपडेट आता है हम सीधे आपके पास आएंगे। फिलहाल बात किसानों की। किसानों से जुड़े दोनों विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। इससे पहले कृषि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, जहां एक तरफ किसान इस बिल का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए, वहीं विपक्ष ने राज्यसभा में बिल को लेकर हंगामा किया। आपको किसानों के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर, अंबाला, लुधियाना, भटिंडा, रोहतक और बरनाला। जी हां, हरियाणा और पंजाब कृषि प्रधान राज्य हैं जहां खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आश्रित जो लोग हैं वो किसानों पर हैं। अमनदीप केसरी हमारे साथ आईएनएलडी नेता भी लाइव जुड़ गए। अमनदीप जी, जो विरोध है किसानों का, क्योंकि आप आईएनएलडी से आते हैं, ये वो पार्टी है जो किसानों की पार्टी है और किसानों के हित की बात करती है, विरोध आपका किन पॉइंट्स पर है? क्योंकि सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। एमएसपी को लेकर विवाद है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो बीजेपी के आला नेता हो, उन्होंने कहा एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी पर बदलाव नहीं होगा, किसान इसका सशक्तिकरण होगा। साथ ही साथ जो बड़े आप कह सकते हैं उद्योगपति हैं वो किसानों से डायरेक्ट माल खरीद पाएंगे। विरोध किस चीज का है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बात हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं और बड़े देश के नेता हैं, कृषि मंत्री जी, उनको समझनी चाहिए कि किसान इतनी ज्यादा संख्या में आज सड़क पर है तो कोई तो कारण होगा। ये झूठ बोलना छोड़ दें वो कि भाई कोई भी इसका विरोध नहीं है। जहां तक एमएसपी की बात है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएसपी अब भी 23 फसलों पे आती है, लेकिन अब भी व्यापारी खरीदता है किसान की फसल, सरकार नहीं खरीदती ज्यादातर फसल, व्यापारी खरीदता है। लेकिन केवल 6% जो है पूरे देश की फसल एमएसपी पे बिकती है, 94% अभी भी नहीं बिकती। तो अगर अब इन्होंने और ज्यादा व्यापारी को छूट दे दी है। पहले तो व्यापारी आता था मंडी के अंदर खरीदने के लिए, वो मंडी के अंदर जब खरीदता था वो प्रदेश की सरकार को टैक्स भी देता था, आड़ती को कमीशन भी देता था। अब इन्होंने वो भी खत्म कर दिया है। तो पहले भी व्यापारी जब आता था तो वो तब भी एमएसपी पे नहीं खरीदता था। इसीलिए किसानों के मन में, और ये शंका नहीं है, ये पूरा सच है
कि बिल्कुल भी एमएसपी पे नहीं खरीदी जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एमएसपी 23 फसलों की आती है केंद्र की तरफ से, लेकिन किसान की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती जब वो व्यापारी खरीदता है। आज ये 3 अध्यादेश ला करके इन्होंने किसान के ऊपर और बड़ा अत्याचार किया। बिल्कुल अत्याचार किया। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। शिवम, बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों पर अत्याचार कर रही है सरकार। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं खासतौर से हरियाणा और पंजाब से आ रही है, वो बताती है कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो इन बिलों से आश्वस्त नहीं है, उसको भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। शिवम, आवाज मिल रही है आपको? जी जी शिवम, जो तस्वीरें दिख रही हैं खासतौर से हरियाणा और पंजाब से, उससे तो साफ लग रहा है कि जो कृषि प्रधान राज्य है वहां के किसान जो है उसको भरोसा नहीं है इन बिलों पर। सर वहां के मैंने आपको फिर कहा कि वहां के किसानों का जो गुस्सा है वो जायज है। आप सरकार से भाजपा जनता पार्टी के सही साहब, बीजेपी समर्थक शिवम त्यागी भी हमारे साथ है। शिवम, क्या बीजेपी ने जो ये बिल्स लाए हैं जिसका अपोजिशन विरोध कर रही है, इसको हम मान लेते हैं कि चलिए राजनीति है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की जो तस्वीरें हैं वो तो बता रही है कि किसान जो है वो बिल्कुल भी उसको भरोसा नहीं है इन बिलों पर। देखिए, कहीं ना कहीं आपने एक चीज देखी होगी इस देश में कि प्रोपेगेंडा करने वाली जितनी भी पार्टीज रही हैं, चाहे कोई भी लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शुरुआत में जनता को भ्रमित करने में किसी हद तक कामयाब रहे हैं। चाहे ये इस बिल की बात हो, चाहे इससे पहले जितने भी बिल्स आए हैं उनको लेकर बात रही हो, लेकिन चीजें बहुत क्लियर है। सरकार की तरफ से जितनी बार भी जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट हो, चाहे वो कृषि मंत्री जी की स्टेटमेंट हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट हो, उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि यहां पर एमएसपी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और एपीएमसी की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इस बात को टाइम एंड अगेन रिपीट किया गया है। और मैं एक और रेफरेंस आपको देना चाहता हूं कि 2008-2009 में जो कांग्रेस इस चीज का विरोध कर रही है, खुद राहुल गांधी का एक इंटरव्यू है कि कहीं ना कहीं इस चीज की परेशानी है कि किसान अपना माल जो है जहां बेचना चाहता है वहां बेच नहीं पाता और इसकी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हमें रोक रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, चलो इन मुद्दों पर तमाम तरह के डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में हैं। चलिए, आप जनता के बीच में रहिए। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर राजनीति तेज हो रही है, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है।